वेलकम टू बोर्ड एग्ज़ाम चैम्पियंस। आज के वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। Long answer question. 47. Draw a labeled diagram of an electric motor. Explain its principle and working. What is the function of a split ring in an electric motor? Answer. Diagram of an electric motor. Here is a description of an electric motor diagram. You would typically label it as follows. Battery or power source supplies electrical energy. Coil or armature, ABCD, a rectangular coil that rotates within the magnetic field. Magnet provides the magnetic field with north and south poles. Split rings, commutator, two halves of a ring that reverse the direction of current through the coil. Brushes, stationary conductors that maintain contact with the split rings. Principle of an electric motor. An electric motor operates on the principle of the motor effect, which states that a current-carrying conductor experiences a force when placed in a magnetic field. The direction of this force is given by Fleming's left-hand rule. Thumb, direction of force, motion. First finger, direction of the magnetic field. Second finger, direction of current. According to this rule, if you hold your left hand so that the first finger points in the direction of the magnetic field, and the second finger in the direction of the current, the thumb points in the direction of the force or motion of the conductor. This principle allows the motor to convert electrical energy into mechanical energy. Working of an electric motor. Current supply. When current flows from the battery into the motor, it enters through the brushes and reaches the coil through the split rings. Magnetic force on coil. The current through sides A, B and C, D of the coil flows in opposite directions, creating forces that are also in opposite directions. According to Fleming's left-hand rule, side AB experiences an upward force, while side CD experiences a downward force. This creates a rotational motion in the coil. Role of split rings, commutator. When the coil completes half a rotation, the split rings reverse their contacts with the brushes. This reversal of current keeps the forces on sides A, B and CD in a direction that continues the rotation in the same direction. Continuous rotation. This cycle continues as long as the current is supplied, causing the coil to rotate continuously and producing mechanical work. Function of the split ring, commutator. The split ring, or commutator, plays a crucial role in the electric motor by reversing the direction of current in the coil after every half rotation. This reversal ensures that the direction of the force on each side of the coil remains consistent, allowing continuous rotation in a single direction. Without the split ring, the coil would oscillate back and forth, instead of rotating continuously. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 47 विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाइए। इसके सिद्धांत एवं कार्यविधि को स्पष्ट कीजिए। विद्युत मोटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है? उत्तर विद्युत मोटर का नामांकित चित्र। विद्युत मोटर का एक चित्र इस प्रकार होता है, जिसमें निम्नलिखित भागों का नामकरण होता है। विद्युत मोटर का एक चित्र इस प्रकार होता है, जिसमें निम्नलिखित भागों का नामकरण होता है। बैटरी या शक्ति स्रोत विद्युत ऊर्जा प्रदान करता है। कुंडली या आर्मेचर, ABCD, एक आयताकार कुंडली जो चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है। चुंबक चुंबकीय क्षेत्र प्रदान करता है,
जिसमें उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होते हैं। स्प्लिट रिंग आधा छल्ले, दो आधे छल्ले जो कुंडली में विद्युत धारा की दिशा बदलते हैं। ब्रश स्थिर कंडक्टर जो स्प्लिट रिंग से संपर्क बनाए रखते हैं। विद्युत मोटर का सिद्धांत। विद्युत मोटर मोटर प्रभाव मोटर इफेक्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो बताता है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे विद्युत धारावाहक चालक पर बल लगता है। इस बल की दिशा को फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम से ज्ञात किया जा सकता है। अंगूठा बल की दिशा, गति। पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, दूसरी अंगुली धारा की दिशा। इस नियम के अनुसार यदि आप अपना बायां हाथ इस प्रकार रखें कि पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो और दूसरी अंगुली धारा की दिशा में हो, तो अंगूठा बल की दिशा को दर्शाता है। इस सिद्धांत का उपयोग करके मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर की कार्यविधि। धारा का प्रवाह। जब बैटरी से धारा मोटर में प्रवेश करती है तो यह ब्रश से होकर स्प्लिट रिंग के माध्यम से कुंडली तक पहुंचती है। कुंडली पर चुंबकीय बल। कुंडली के अब और सीडी पक्षों में धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है, जिससे बल भी विपरीत दिशा में लगता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अब पक्ष पर ऊपर की ओर बल लगता है, जबकि सीडी पक्ष पर नीचे की ओर बल लगता है। यह बल कुंडली को घुमाने में सहायता करता है। स्प्लिट रिंग का कार्य। जब कुंडली आधा चक्र पूरा करती है, तब स्प्लिट रिंग ब्रश से संपर्क बदल लेती है। इससे कुंडली में धारा की दिशा भी बदल जाती है, जिससे बल की दिशा स्थिर रहती है और कुंडली एक ही दिशा में घूमती रहती है। लगातार घूमना। इस प्रक्रिया से कुंडली में निरंतर घुमाव होता है जब तक कि धारा प्रवाहित होती रहती है, जिससे यांत्रिक कार्य उत्पन्न होता है। विद्युत मोटर में स्प्लिट रिंग का कार्य। स्प्लिट रिंग या कम्यूटेटर विद्युत मोटर में धारा की दिशा को हर आधे चक्र के बाद बदलने का कार्य करता है। इस बदलाव से कुंडली के प्रत्येक पक्ष पर बल की दिशा में निरंतरता बनी रहती है, जिससे कुंडली एक ही दिशा में लगातार घूमती रहती है। यदि स्प्लिट रिंग नहीं होती तो कुंडली आगे पीछे ही घूमती रहती और निरंतर गति प्राप्त नहीं होती। ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगले हेल्पफुल वीडियो के लिए तैयार रहें। शुक्रिया बोर्ड एग्ज़ाम चैंपियंस देखने के लिए और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छी तरह से करें।